Hello students. So here is your chapter number 4. This is your first video for chapter 4 of civics. Chapter name is gender, religion and caste. So in this chapter we are going to know about the three different categories related to politics. How gender is related to politics, how religion is related with politics and how caste is related with politics. So the very first one is your gender and politics. First of all, we should know that there are the gender there are two kind of divisions are there, that is the male and female only. So gender division is or a form of hierarchical division exists in India. So this gender division is prevailing in India from the very past, from the very beginning only. Sexual division of labor exists in many Indian homes even now. Even now also we have the division of labor like male and female, girl or boy. There are a lot of differences between them, so they are being even treated also differently. You people have read all these things in your class 6th, where the in an Indian family, a boy or a girl is treated differently in Indian families. Like if a boy is there and if he started on any of the matter, so he is just consoled by saying that he should not weep, he should not cry because he is a boy. And even the playing items also are different. Like the girls, they used to play, for them the playing items are the kitchen set, and for boys they have the cricket bat itself. So there is the these are the some differences which every Indian family had have made in the in their boys and girls. So gender discriminate in all spheres of life has given rise to feminist movement. So this kind of differences, right now I'm just talking about the Indian society, but these kind of differences are there uh, throughout the world. You have I have explained you in your history part also that suffrage movement for women, they have to really fight for their movement. Why? Because they have a different division. उनका डिफरेंट डिवीजन है, उनको अलग से उन्होंने राइट्स भी नहीं दिए हुए, ओनली द मेल्स वर गिवन, मेल्स को ही ये दे रखी थी राइट टू वोट का, और फीमेल्स को नहीं दिया. सो दे हैव टू रियली फाइट फॉर दैट सफरेज. उनको सफरेज मूवमेंट चलाना पड़ा और उसके बाद उनको राइट टू वोट मिला. तो ये इसी में इन्होंने एक वर्ड ऐड किया है, फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट मूवमेंट. फेमिनिस्ट मूवमेंट मीन्स मूवमेंट्स रिलेटेड टू विमेन, और विमेन रेजिंग देयर वॉइस, अपनी आवाज़ खुद से उठा रही हैं. ऑल दोज काइंड ऑफ मूवमेंट्स वर ट्रीटेड एज फेमिनिस्ट. सो टू कर्ब द लो proportions of women participation in Indian legislature, even you have noticed in your previous chapters also I have explained you that in India, you, like in federalism chapter number 2 only I explained you that this kind of participation uh, of Indian women is very less in the government sector also. गवर्नमेंट के सेक्टर में अगर आप देखें इंडियन विमेन पार्टिसिपेशन का, तो उनके लिए कोई सीट्स ज़्यादा रिजर्व नहीं है. वो इलेक्शंस में भी वो बहुत कम खड़ी होती हैं. बट रूरल एरियाज़ में, अब आप लोगों को सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था मैंने कि फेडरलिज्म के उसमें ही, बिकॉज इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, तो इंडिया ने अपनी जो 3 लेवल ऑफ डिवीज़न है गवर्नमेंट का, लेवल है गवर्नमेंट का, उसमें जो लोकल लेवल है उसमें उन्होंने 33% सीट्स जो है रिज़र्व कर रखी हैं फॉर द फीमेल्स ओनली. लाइक दोज ऑन दो सीट्स ओनली फीमेल कैंडिडेट्स विल स्टैंड. सिर्फ औरतें ही खड़ी होंगी. अब आपने देखा होगा जब भी लोकल पंचायती लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, या आप कह सकते हो मेयर्स के इलेक्शंस होते हैं, तो इन दोज इलेक्शंस दो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन ओनली. तो वो विमेन के लिए रखी जाती हैं. Now is your religion and politics. Second heading is your religion and politics. So this is your religion and politics. Religion and politics, Gandhi ji said that politics must be guided by ethics drawn from religion. गांधी जी का ऐसा विश्वास था, ऐसा मानना था कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति को जो पुराने हमारे लोग जो हैं
वो गाइड करने चाहिए, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, यानी जो हमारे धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनसे पॉलिटिक्स को समझने की हमें ज़रूरत है। प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। लेकिन अगर हम लोग रिलीजन बेसिस पर एक कंट्रीज़ को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, सो इन दैट केस दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे कि रिलीजन को, वैसे रिलीजन में लाइक इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, secular India believes in secularism means no official religion and all the religions are treated equal, सब religions को हम बराबर मानते हैं, so anybody can have any religion। तो अगर बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में वैसे सलाह ले लें रिलीजन से, आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये चीज़ें की हुई हैं, सो प्रॉब्लम्स बिगन। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है अगर जो रिलीजन है वो बेस बन जाए किसी भी नेशन के उसमें। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान इट इज़ अ मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश इट्स अ मुस्लिम कंट्री। तो अगर इस बेस पे अगर हम बोलेंगे कि रिलीजन बेस पे, ये दिस इज़ स्पेशली फॉर द इंडियन सोसाइटी, फॉर द इंडियन नेशन, हमारे इंडियन नेशन के बारे में ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पर हम अपने देश को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखते हैं। ठीक है, एंड देन इज़ योर कास्ट एंड पॉलिटिक्स। सो द थर्ड, सॉरी इसके पहले आपका देखिए लास्ट में ये जो हेडिंग दिया हुआ है, कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल जो पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है जो कम्युनिटी बेस पर, यानी कि जो रिलीजन बेस पर अलग अलग कम्युनिटीज़ बनती हैं और उन कम्युनिटीज़ बेसिस में कभी कभी दंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। यू हैव सीन द पिक्चर द फिल्म नायक ऑल्सो, जिसमें कि वो कम्युनिटी बेस पर ही धर्म के नाम पर ही उन्होंने दंगे फसाद करवाए, एंड दैट उसकी वजह से पूरा जो एक महाराष्ट्र का उन्होंने दे हैव सेट द एग्जाम्पल फॉर दैट, तो वो पूरे महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हो गई थी। सो बोलते हैं कि अगर हम पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेंगे या रिलीजन्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लेंगे, या पॉलिटिक्स का बेस जो होगा वो रिलीजन बेस पर होगा, रिलीजन डिफरेंसेस पर होगा, तो उसमें कम्युनल राइट्स विल बी देयर। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही हमारे कंट्री को इफ़ेक्ट करेगी। नाउ इज़ योर नेक्स्ट वन इज़ योर कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट और पॉलिटिक्स में देखिए, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द वीकनिंग पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। अब आप देखिए कास्ट की, इन इंडिया वी हैव दिस कास्ट सिस्टम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बहुत सारे हमारे यहाँ पर कास्टिज्म सिस्टम था, upper caste and lower caste, and lot of differences were also there. They were not even the lower caste people, they were not treated equally, and even they were not given any kind of privilege also. बहुत सारी चीज़ों से उनको हटा कर भी रखा जाता था। तो अब बोलते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हो गया है, बहुत सारे शहर हो गए हैं डेवलप। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी जो है हमारी, और एजुकेशन जो है वो साक्षरता दर और पढ़ाई का जो दर्जा है वो बढ़ गया है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लोग जो है ऑक्यूपेशन के कारण एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं। एंड द वीकनिंग पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कास्टिज्म था ये मेन जो हम कह सकते हैं कि हमारे लैंडलॉर्ड्स की वजह से कुछ ज़्यादा ही था, तो वो भी अब ख़त्म हो चुका है गाँव में। सो द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। इसलिए अब जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराने नॉर्म्स उन्होंने बनाए हुए थे, जो कंडीशंस बनाई हुई थी कास्ट को लेकर, ये लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको सिर्फ यही वाले काम करने हैं, ये गांव से बाहर ही रहने चाहिए, इनको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है अब वो ब्रेक डाउन हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। यट फिर भी देखिए अगले उसमें क्या दिया है, द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स एंड वाइस वर्सा हैज़ नॉट डिसअपियर्ड इन इंडिया। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस होता है असर, कास्ट का जो असर है हमारी पॉलिटिक्स में से अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को व्हेन यू रीड द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू देयर आल्सो, बट इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू, स्टिल दिस कास्टिज्म इज़ देयर। हम कह सकते हैं क्यों, आज की डेट में भी कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का जो लोग हैं दे आर नॉट मैरिंग विद इन द अदर कास्ट, वो अपनी कास्ट में ही लोग ढूंढते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, द सेकेंड पार्ट वी विल डू later on.